पहला एग्ज़ाम जो आपने नीट का देकर आया, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आपको पता चला कि पेपर लीक हो गए, तो उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? डिमोटिवेटेड या फिर खुद को संभाला? क्या हार्ट अटैक। शुरू के 4 दिन तो सर पूरा मौज में रहा कि चलो हो गया, छुटकारा मिल गया, कुछ कर लिए। हाँ। फिर उसके बाद पता चला कि नीट कैंसिल हो गया, तो 4-5 दिन तो अडेप्ट करने में लगा, एक हफ्ता लग ही जाता है उसको। हाँ। हमको डायरेक्ट पता चला शादी के दिन 12 तारीख को, उस दिन हम ना सूट आयरन कर रहे थे, कोट आयरन कर रहे थे बारात जाने के लिए, तो उस टाइम पता चला। तो हाँ, हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन फिर समझ गए कि अब जो है सो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उसमें आपका कितना भी अच्छा, मेरे उसमें 701 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन आप सीबीएसई बोर्ड से थे इस बार हाँ ये 12th में? हाँ। तो क्या ये ओएसएम जो फर्स्ट बार जो ऑनलाइन जो चेक हुआ, उस वजह से भी ऐसा लगता है कि मार्क्स जो है बच्चों के प्रभावित हुए हैं? सर मेरा खुद ही प्रभावित हुआ था। नमस्कार। अभी हमारे सामने जो है हमारे दो भैया हैं, और ये दोनों भैया इस बार नीट की परीक्षा में अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए सफल हुए हैं। तो आप अपना पहले परिचय दीजिए और नीट की परीक्षा में आपने कैसा रैंक लाया और ये सारी बातें। नमस्ते श्रीमान, और मेरा नाम रुद्रेश प्रताप यादव है। मैंने नीट में 651 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 720। मेरी ऑल इंडिया रैंक है 1331 एंड माय कैटेगरी रैंक इज 423। थ्रू आउट माय नीट प्रिपरेशन आई फॉलोड द very one principle of consistency. I thought that consistency is the key to success. If you want to be successful, if you want to crack any exam in your life, consistency plays the major role, followed by discipline and also motivation, which is backed by your parents and your family members, your teachers, and everyone whom you trust. That will help in your entire journey. My family actually helped a lot in my journey. They don't let me do any work so that I can totally concentrate on my studies only, and teachers also guided me very well enough so that I can conquer this examination. It is not only that the teachers which I studied in 11th and 12th only helped me crack this examination. It is the role of the teachers who also taught me till my 10th standard, because they built a base for me. Using that, I can achieve big goals in my life. If that base would not have been built, I could not have understood the concepts in class 11th onwards, and so that I could not have even secured such a good rank. So I would like to thank all the teachers who guided me, supported me, motivated me, and led my path towards success. Another thing that I would like to say is you have to be concentrated at your studies only. You cannot prioritize two things at the very same time. If you prioritize your other activities, you have to somewhere manage your studies, which is not possible generally in 11th and 12th, because it has a very vast syllabus, and if you have to cover whole syllabus of class 11th and 12th, which approximately took, including physics, chemistry and bio, it is 80 to 82 chapters, and you have to remember all that very chapters for your NEET examination. So you have to be very focused and attentive towards your goal, that what you want to do. And if you will conquer NEET in the first attempt, it is very good, because after, when you take drop, there is a mental pressure also that you face in the drop year, that whether I will be able to conquer this exam in my drop year or not, or whether I will have to take another drop in my NEET journey. So just be confident, be concentrated towards your studies so that you can conquer in the very first attempt. It is a fact of very honor that you conquer any exam or crack any exam in the very first attempt, because you have the pressure of giving your boards examination also in the very month of February and March, which is very crucial for NEET perspective, because in the very first Sunday of May you have to appear in your NEET examination. But I think that doesn't make any difference, because in the boards examination itself, the syllabus is the same. So if you even focus in that 2 months in the boards examination or on the NCRT, that gives you a boost for NEET examination, because perhaps many times students don't focus on NCRT because they thought we have to practice numericals and give our best in other theories and not on written practice. So if we read even NCRT for our boards, it helps a lot for our NEET journey, and it really makes a good step towards your success. That's from my side. Thank वेरी you वेरी so much. कॉन्ग्रेचुलेसन। आपके बगल में राजन बैठे हुए हैं,
इन्होंने भी नीट के परीक्षा को क्रैक किया है। और मैं राजन से जानना चाहूँगा कि नीट की प्रिपरेशन और साथ में जब आप 12th का भी प्रिपरेशन कर रहे हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप रिजल्ट दे रहे हो, तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आती है या किस तरह से आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखते हो, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हो? थोड़ी से आप इन चीज़ों पर प्रकाश डालें और आप अपना रैंक भी बताएं कि आपका रैंक क्या है। सर मेरा रैंक नीट रैंक है 13,700 समथिंग एंड कैटेगरी रैंक है 6,256। ये 2 साल के जर्नी में एक चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हर दिन आपको स्टडी करना है। फेस्टिवल हो तो फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन उसमें भी आप टाइम निकालिए पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप फेस्टिवल में भी पढ़े तो ये आपको एक एक्स्ट्रा कहते हैं ना एज प्रोवाइड करता है अदर स्टूडेंट्स के मुताबिक। और इस जर्नी के दरमियान आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन समझना भी है और उसको दिमाग में भी रखना है, ताकि अगर वे लाइन अगर आपको क्वेश्चन में दिखे तो आप उसको क्लिक कर सकें कि अच्छा ये इसको हम पढ़े हैं, ये ऐसे बनेगा। और इसी के साथ एक थोड़ा ये भी प्रेशर था कि पेपर लीक भी थोड़ा सा हो गया था। हाँ, तो मेरा इस पे सवाल है कि जैसे पहला एग्ज़ाम जो आपने नीट का देकर आया, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आपको पता चला कि पेपर लीक हो गए, तो उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? डिमोटिवेटेड या फिर खुद को संभाला? क्या शुरू के 4 दिन तो सर पूरा मौज में रहा कि चलो हो गया, छुटकारा मिल गया, कुछ कर लिए। हाँ। फिर उसके बाद पता चला कि नीट कैंसिल हो गया, तो 4-5 दिन तो अडेप्ट करने में लगा, एक हफ्ता लग ही जाता है उसको। हम तो एक्चुअली मतलब 2 साल का छंडी था उस टाइम, तो ऐसे कोई वेडिंग अटेंड नहीं करते थे। अगर मतलब रहता भी था, अगर अपने परिवार में क्लोज है कहीं तो उसमें बस एक दिन जाते थे, उस दिन रात में जाते थे और फिर सुबह में चले आते थे, क्योंकि मेरे क्लासेस भी रहते थे तो मिस नहीं होने चाहिए। तो लेकिन फिर मेरे भैया का शादी होने वाला था अप्रैल में, तो वो हम बहुत जिद करके मामा से उसको मई में करवाए सिर्फ की, ताकि 3 मई को एग्जाम हो जाए तो फिर हम एंजॉय कर सके। तो हम उसको 12 मई को करवाए थे, शादी का डेट था 12 मई को। तो हम 5 को ही चले गए थे, क्योंकि बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं गए थे, तो नानी घर जाके सोचे कि एंजॉय करेंगे। अब वो आराम से चिल कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया नहीं, मतलब गांव में थे तो वहाँ फोन नहीं ले गए थे कि हमको कुछ सोशल मीडिया से मतलब मेंटली फ्री थे कि नीट एग्जाम हो गया, अब एंजॉय करो। हो गया सो हो गया। हमको और मतलब 7-8 तारीख से शुरू भी हो गया था, बाद की लीक हो गया, तो हमको कुछ नहीं पता था वो सब की। हमको डायरेक्ट पता चला शादी के दिन 12 तारीख को। उस दिन हम ना सूट आयरन कर रहे थे, कोट आयरन कर रहे थे बारात जाने के लिए, तो उस टाइम पता चला। तो हाँ, हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन फिर समझ गए कि अब जो है सो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उसमें आपका कितना भी अच्छा, मेरे उसमें 701 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन वो सब गया। उसमें परफॉर्मेंस पहले एग्जाम की तुलना में दूसरे वाले एग्जाम में जब आप आंसर की मिलाए होंगे, दूसरे में थोड़ा परफॉर्मेंस पैनिकनेस भी हो गया कि पहले में मेरा 701 मार्क्स आ रहा था, तो पेरेंट्स को एक्सपेक्टेड था कि इस बार तो 700 से ज्यादा ही लगेगा। मेरा खुद भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब मेरे पास 1 महीना और आ गया तो 701 क्रॉस करे, और एग्जाम में पेपर का टफनेस बढ़ गया तो थोड़ा एक प्रेशर आ गया कि लगता है कि वो भी नहीं आ पाएगा, उतना भी नहीं। और हमको तो 4-5 क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ा था, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। यानी आप यह कोई नकार नहीं सकता है कि पेपर लीक होने से बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या आया। और देखने को वो मिला। जो 10 दिन गैप हो गया ना, तो एक वो भी था कि तुरंत स्टार्ट भी नहीं कर पाए ऐसे, मतलब अगर 4-5 कोई होता तो हाँ भी तुरंत छोड़ रहे, तुरंत स्टार्ट कर लेते। जो 10 दिन का गैप हो गया तो एक मतलब मेरा तो पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया था, कंसिस्टेंसी ही खत्म हो गया था। फिर से स्टार्ट करने में भी 8-9 दिन लग गए थे। मतलब सबका अपना अपना, कोई होगा एक ही दिन में स्टार्ट कर लिया, लेकिन मेरा था थोड़ा तो उस इन्वायरमेंट से ही बिल्कुल हट गए थे, बुक कॉपी देख ही नहीं रहे थे 10 दिन, तो थोड़ा इफेक्ट हुआ। लेकिन फिर समझ गए कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेट भी फिर आ गया था कि 21 जून को ही है कि अब नहीं कुछ कर सकते, तो फिर स्टार्ट कर दिया था टेस्ट अमाउंट। जैसा कि रुद्रेश बोला कि उसका 700 आ रहा था, मेरा 645 का राउंड आ रहा था। और इससे सेकंड वाले में कितना आया? 590 है। यानी परफॉर्मेंस डाउन गया। नहीं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल भी हाई था, तो रैंक ऑलमोस्ट हाँ, सेकंड वाले में क्वेश्चन का लेवल कहा जा रहा है बहुत हाई। और नहीं, केमिस्ट्री जनरली एनालिटिकल का इजी रहता था, इस बार केमिस्ट्री को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया सर गया। एवरेज मतलब जितना बच्चा दिया उसका 40-50 मार्क्स डाउन हुआ है। एक्सेप्शनली है कि किसी का रहा है वो सेम मार्क्स। और वहाँ पे लक फैक्टर भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि मेरा पहला वाला जो नीट का सेंटर था परफेक्ट था, मतलब सारा कुछ डिस्टर्ब नहीं, टीचर बहुत सपोर्टिव थे। कुछ भी फोटो चिपकाना था अटेंडेंस शीट में तो वो टीचर्स का ही काम रहता है, तो वो वहीं पे कर दिए थे। लेकिन मैं जो दूसरा सेंटर तो वहाँ टीचर्स बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे, और पंखा तो वहाँ चल ही नहीं रहा था, पता नहीं बस चल रहा था, गलती से पता नहीं घूम रहा था हवा की वजह से कि क्या।
और बहुत देर मेरे एग्जाम के पहले पूरा आंख लाल हो गया था। तो मतलब बहुत सारे चीज मैटर करता है। मैटर करता है। शायद गॉड्स प्लान ही वही था कि अब कुछ प्लान किया होगा गॉड्स ने, तो जो होना होगा होगा। लेकिन सब चीज मैटर करता है, लक भी मैटर करता है, तो इसलिए पूजा भी करते रहना चाहिए कि भगवान साथ दे। बिल्कुल अपने आराध्य से अपने आत्मा की शांति के लिए, मन की शांति के लिए जो है वो जो आपके सुपर पावर है उनसे बिल्कुल जो है प्रार्थना करना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए। वह आपको सेल्फ मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है। तो राजन से मैं पूछना चाहूँगा, जब आपने नीट का परीक्षा क्रैक कर लिया है तो आगे की क्या रणनीति है? आगे किस तरह से आपने प्लान करा है? क्या क्या आपको अपने से उम्मीदें हैं? ये एमबीबीएस के कोर्स पे, ये जो 4-5 साल का कोर्स है उस पे, फिर उसके बाद पीजी करना है। उसमें फिर ऐसे मेरा जो ब्रांच हम चाहते कॉप करना में गैस्ट्रो है, गैस्ट्रो ब्रांच हम चाहते कि हमको मिल जाए, फिर उसमें प्रोसीड करना है। स्पेशलिस्ट उसमें भी होता है। तो अभी तो कहें तो 10-12 साल अभी पढ़ना ही है, अभी कुछ ऐसा है नहीं कि हम लोग को रिलैक्स करना है। ये तो थोड़ा निकालने का देखिए, ये फायदा ये होता है ना कि आपको 2 महीने का आराम मिल गया। सही बात। 1 महीने तो एग्जाम को नहीं, लेकिन एग्जाम के बाद तो थोड़ा टेंस्ड थे। फिर हम दोनों मतलब 11-12 हम लोग उतना कनेक्टेड नहीं थे क्योंकि दोनों की स्टडीज थी। 2 साल तो तक हम लोग एक बार भी बात नहीं बिल्कुल की। नहीं। डायरेक्ट नीट का एग्जाम हुआ, यानी जबकि 10th में आप लोग बिल्कुल एकदम एक दोस्त की तरह रहे हैं, पढ़े। मतलब साथ में हम लोग हाँ, रहते थे। हाँ। सेक्शन अलग था लेकिन हाँ, फ्रेंड्स सभी लोग थे। वो तो मैं जान ही रहा हूँ, देखा ही हूँ। तो हाँ। सर तो 11-12 में कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग दोनों अपने स्टडीज के टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड थे। फिर जैसे नीट का एग्जाम हो उसके अगले दिन ही हम लोग का बात हुआ, और उस दिन से तो फिर साथ में कहीं भी घूमना स्टार्ट किया, थोड़ा मतलब- पार्क जाना स्टार्ट किए। हाँ। ये है कि ये 2 साल के जर्नी में कोई आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते नीट देने के बाद कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, क्योंकि इतने लाख एस्पिरेंट है, सबके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत हुई। यानी अगर आप एक्सक्यूज दीजिएगा, इग्नोर करिएगा, तो आप बस उस भीड़ से पीछे हो जाइएगा जो भीड़ उस सफलता के लिए दौड़ लगा रही है। You have to always give your best in Best. the very first attempt. Very और first. एक कौन सर बोले थे क्वेश्चन सेट किया था सिलेक्शन के लिए नहीं, रिजेक्शन के लिए किया हाँ, था। नीट में आपको यूनिकनेस कुछ रहेगा तो ही आपका सिलेक्शन। अगर जो बोर्ड्स है वो आपका सिलेक्शन का एग्जाम होता है कि आप उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पास होते हैं, लेकिन नीट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एलिमिनेट होते हैं। तो हम लोग Eliminate होते हैं। को थ्रू आउट द 2 ईयर यही बताया गया है कि नीट इज नॉट एग्जाम ऑफ सिलेक्शन, इट इज एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन, एंड यू हैव टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दैट एलिमिनेशन एंड बी सिलेक्टेड। Oh, yes. यही 2 ईयर Right. मोटिवेशन रहा है कि एलिमिनेट नहीं होना है। और कोचिंग के टीचर्स का तो रहा ही है, साथ यहाँ के भी सर्स का मतलब बहुत। साथ रखेंगे। 9th-10th में जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए हम दोनों, क्योंकि हम यहाँ के जो सर भी थे वही भी मतलब डिटेल में पढ़ाते थे। हाँ। और थोड़ा आगे की चीजें भी बता देते थे कि अगर हम आगे जाते ऐसा नहीं लगे कि बिल्कुल न्यू कुछ आ गया है, थोड़ा कनेक्टेड फील करे कि 10th में जो किया अब 11th में वो कनेक्ट हो रहा है साथ में। अच्छा, ऐसा है क्या कि कुछ बच्चे एक्सक्यूज देते हैं कि सर 12th की तैयारी करने के दौरान नीट की प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम होती है, या 12th के मार्क्स प्रभावित होते हैं उससे, क्योंकि 12th में जो है डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है और नीट में जो है ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन होते हैं। इस पर रुद्रेश मैं आपका विचार जानना चाहूँगा। नहीं, वैसा तो नहीं है। हमको भी पहले ऐसा लगता था कि वैसा होता है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मतलब थ्रू आउट ईयर तो मैं नीट का ही प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि बोर्ड्स के मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने सोचा था कि जो करना होगा मैं लास्ट में करूँगा, अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो लिखना मैं सीख जाऊंगा कि कैसे किसी को डिस्क्राइब करना है, लेकिन अगर मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट रहेगा तो चाह के भी कुछ डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। तो जनवरी तक मैंने जनवरी में मैंने जेईई मेंस दिया था बस प्रैक्टिस के लिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो उसमें मेरा फिजिक्स में 99.9 परसेंटाइल आए थे और केमिस्ट्री में 99.6 परसेंटाइल थे। मैथ मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, 0 मार्क्स, तो फिर भी उसमें 32 परसेंटाइल थे, तो वो 0 मार्क्स में ठीक था उतना भी। यानी ये एक्सक्यूज गलत एक्सक्यूज है ना? करने और फिर मैंने फरवरी से स्टार्ट किया, तो मैंने सैंपल पेपर खरीदा था क्योंकि कुछ नहीं पता था कि क्या लिखना है, क्योंकि मेनली तो जेईई में उसमें ऑब्जेक्टिव पे फोकस था थ्रू आउट द 2 इयर्स। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आ गया कि एक बार एनसीईआरटी अगर आप रीड कर लेते हो तो बोर्ड्स में आप एग्जैक्ट लिख सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन भी आते हैं उसमें जो वर्ड्स रहते हैं वो एनसीईआरटी से ही रहते हैं, नॉट ओनली इन क्लास 10th बट ऑल्सो इन क्लास 12th। तो और मैंने एनसीईआरटी फिजिक्स का जब मेरा एग्जाम था, फर्स्ट फिजिक्स का था 21 फरवरी को था ना, तो मैंने लगता है 5 फरवरी से 21 फरवरी तक मैंने फिजिक्स पढ़ा था। और मैंने थ्रू आउट द 2 ईयर उतना फिजिक्स नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि मेनली न्यूमेरिकल पे फोकस रहता है 2 साल में, तो एनसीईआरटी मेरा गैप हो रहा था। तो मैं सोची कि नीट के टाइम मतलब बोर्ड्स के टाइम वो कर लेंगे, तो 15 दिन में मैंने एनसीईआरटी कर लिया था। तो नीट में जो वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे मेरे वो बच गए थे बोर्ड्स और नीट और नीट में।
तो मेनली वो हो जाता है, और सैंपल पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाता है कैसे लिखना है। मैं जब सैंपल पेपर घर पे सॉल्व करता तो मेरे उसमें 70 में 61 62 आते थे फिजिक्स में, लेकिन जब मैंने और एग्जाम अपना दिया था तो मेरे 66 आए थे आउट ऑफ 70, तो अच्छा था। अब पता नहीं 4 नंबर कहाँ, मेरे तुम 70 एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन पता नहीं कहाँ कटा। और फिर चैलेंज हम करने का सोचे थे लेकिन फिर इधर नीट कैंसिल हो गया और उस टाइम ही चैलेंज का था, तो उतना हम ऐसे चैलेंज किए हैं। मेरा जब रिजल्ट आया क्लास 12 का तो मैं 91.8% मार्क्स ही पान कर थे। फिर मैंने चैलेंज किया, एक्चुअली 4 सब्जेक्ट में चैलेंज करना था लेकिन मेरी दीदी ने बोला कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो मैंने 2 ही सब्जेक्ट में चैलेंज किया, तो मेरे मार्क्स इंप्रूव होकर 96% हुए थे, तो वो 98 तक चले जाता अगर हम 2 सब्जेक्ट में और चैलेंज करते। लेकिन थोड़ा रीनीट का प्रेशर आ गया था, अगर नीट ही रह जाता तो तुम 4 सब्जेक्ट में ही चैलेंज करते, तो फिर मैं 96 भर्ती हो गया, क्योंकि हमको लग ही नहीं रहा था कि उतना कम कैसे आ सकता है, क्योंकि मैंने लिखा था और एग्जाम में तो थोड़ा कॉन्फिडेंट था। क्या राजन के विचार क्या इस मुद्दे पर सेम है? ये सर सही बोल रहा है, क्योंकि मेरा भी एक सब्जेक्ट में मेरा भी मतलब नंबर डाउन हुआ था। हाँ। मतलब मेरा भी नहीं, आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो उतने मार्क्स नहीं आए थे। उससे 5 to 6 मार्क्स कम ही आए, वही थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मतलब स्कैम टाइप। लेकिन ठीक है, अंततः आप दोनों 12th को भी अच्छे से पास करा और नीट का भी जो है बोलना ये चाहते हैं कि ये इसको एक लेना है, मतलब कि ये बेनिफिट की तरह लेना है कि 12th बोर्ड भी कर रहे हैं, तो क्योंकि 12th बोर्ड कर रहे हैं तो फिजिक्स आपको क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा बोर्ड के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। तो नीट में आपको प्लस पॉइंट उसका साबित होगा, क्योंकि इधर नीट में भी नीट में एनसीईआरटी से आया तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वो टेबल है वो जनरली स्टूडेंट नहीं याद करते, वो मैंने बोर्ड्स के लिए याद किया था और उससे ही क्वेश्चन आ गए थे, तो देख के फर्स्ट एक्सप्रेशन में था कि थैंक गॉड बोर्ड्स की प्रिपरेशन की थी, बस नीट का करता तो छूट जाता, 5 नंबर और जाता। और हम लोग उदाहरण है कि हम लोग मतलब बोर्ड में भी मार्क्स ऐसा नहीं कि हम लोग, तुम भी बताओ। बता रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हाँ। मेरा 92.8% आया है बोर्ड में। और इसको चैलेंज करना था लेकिन वो रीनीट के प्रेशर की वजह से नहीं कर पाया, इसका भी मार्क्स इंप्रूव होता और हम बोले थे इसको लेकिन ये नहीं किया। तो वही कह रहे कि जैसे ऐसा नहीं कि हम लोग का प्रभावित उतना हुआ, थोड़ा हुआ, लेकिन नीट करते हुए ये देखा जाए तो एक अच्छा परसेंटेज है, और पेरेंट्स भी मतलब खुश है कि नीट का भी तैयारी कर रहा है, नीट के साथ तुम अगर बोर्ड में भी इतना अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बिल्कुल बात है। बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स तो 91.8 में ही खुश थे कि मत चैलेंज करो, बहुत अच्छा है, नीट के साथ कर लोगे, लेकिन हमको खुद ही नहीं मतलब डाइजेस्ट हो रहा था कि मेरा 91 ही कैसे आ सकता है, मतलब हम लिख कर आए थे। बिल्कुल। पापा तो हमको डांटे कि तुम चैलेंज क्यों नहीं किया। चलिए, हमने चैलेंज करके हमको इसमें मन नहीं था, क्योंकि जितना हम लोग को चाहिए था उतना आ गया, इसमें तो हम लोग सोच रहे 90 से ऊपर भी 90 प्लस इज अ गुड रैंक। और ये दोनों सफलता के लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग आगे चलकर इस समाज के लिए, इस देश के लिए आप अच्छा करो, अच्छे डॉक्टर बनो, डॉक्टर से भी बढ़कर आगे आप एक अच्छे नागरिक बनो और इस देश का नाम रोशन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।